रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित माय होम इन्वायरमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। My Home Environment by Rabindranath Tagore. One great advantage which I enjoyed in my younger days was the literary and artistic atmosphere which pervaded our house. I remember how, when I was quite a child, I would be leaning against the veranda railings which overlooked the detached building comprising the reception rooms. These rooms would be lighted up every evening. Splendid carriages would draw up under the portico, and visitors would be constantly coming and going. What was happening, I could not very well make out, but I would keep staring at the rows of lighted casements from my place in the darkness. The intervening space was not great, but the gulf between my infant world and these lights was immense. My elder cousin, Ganendra, had just got a drama written by Pandit Tarak Ratna and was having it staged in the house. His enthusiasm for literature and the fine arts knew no bounds. He was the center of the group, who seemed to have been almost consciously striving to bring about from every side the renaissance which we see today. A pronounced nationalism in dress, literature, music, art and drama had awakened in and around him. He was a keen student of the history of different countries and had begun but could not complete a historical work in Bengali. He had translated and published the Sanskrit drama Vikram Morvashi, and many a well-known hymn is his composition. I was still a child when my cousin Ganendra died in the prime of his youth. But for those who have once beheld him, it is impossible to forget his handsome, tall, and stately figure. He had an irresistible social influence. He could draw men round him and keep them bound to him. While his powerful attraction was there, disruption was out of the question. He was one of those, a type peculiar to our country, who, by their personal magnetism, easily established themselves in the center of their family or village. I remember still better his younger brother, my cousin Gunendra. He likewise kept the house filled with his personality. His large, gracious heart embraced alike relatives, friends, guests, and dependents. Whether in his broad south veranda, or on the lawn by the fountain, or at the tank edge on the fishing platform, he presided over self-invited gatherings. Like hospitality incarnate, his wide appreciation of art and talent kept him constantly radiant with enthusiasm. New ideas of festivity or frolic, theatricals, or other entertainments found in him a ready patron, and with his help would flourish and find fruition. We were too young then to take any part in these doings, but the waves of merriment and life to which they gave rise came and beat at the doors of our curiosity. I remember how a burlesque composed by my eldest brother was once being rehearsed in my cousin's big drawing room. From our place, against the veranda railings of our house, we could hear, through the open windows opposite, roars of laughter mixed with the strains of a comic song. We could not gather exactly what the song was about, but lived in hopes of being able to find that out sometime. I recall how a trifling circumstance earned for me the special regard of cousin Gunendra. Never had I got a prize at school, except once for good conduct. Of the three of us, my nephew Satya was the best at his lessons. He once did well at some examination and was awarded a prize. As we came home, I jumped off the carriage to give the great news to my cousin, who was in the garden. "Satya has got a prize!" I shouted as I ran to him. He drew me to his knees with a smile. "And have you not got a prize?" he asked. "No," said I. "Not I. It's Satya." My genuine pleasure at Satya's success seemed to touch my cousin particularly. He turned to his friends and remarked on it as a very creditable trait. I well remember how mystified I felt at this, for I had not thought of my feelings in that light. This prize that I got for not getting a prize did not do me good. There is no harm in making gifts to children, but they should not be rewards.
It is not healthy for youngsters to be made self-conscious. माई होम इन्वायरमेंट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मेरे घर का वातावरण। अब हिंदी में हम सुनते हैं। मेरे घर का वातावरण। मैं बचपन में बहुत ही अपने आप को लकी समझा करता था, क्योंकि मेरे घर का जो वातावरण था वह एक जैसे कि संस्कृति को जपने वाला, मेरे लेखन वाचन कला की जो उपासना करने वाला, मुझे बढ़ावा देने वाला, ऐसा वातावरण मेरे घर में हुआ करता था, जिसका फ़ायदा मुझे बाद में हो गया। मुझे याद है कि मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं हमेशा वरांडा में जो गैलरी है उसको लटक लटक के सामने जो घर था उसे देखा करता था। वो घर नहीं, वो एक्चुअली आए हुए गेस्ट लोगों के लिए एक रूम जैसे, गेस्ट रूम के जैसे, रिसेप्शन के जैसे बनाया था। सबसे मेन अट्रैक्शन था उसकी लाइटें। जब शाम हो जाती थी तो उसकी लाइटें चालू हो जाती थी। पुराने ज़माने में कार नहीं हुआ करते थे, तो जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसके ऊपर जो लोग लद के बैठ के जाते थे, वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा वहाँ पे खड़ा रह के वो सारी चीज़ें देखना पसंद करता था। मुझे याद है कि मेरे घर की यहाँ पे जो लाइटें लगी रहती थी सामने, वो वहाँ से मेरे यहाँ तो अंधेरा रहता था, लेकिन वहाँ पे जो लाइटें रहती थी वहाँ से मैं देखा करता था कि जो मेरे घर के सामने मेरे जो भाई वगैरह हैं वो उनका वो स्टेज हुआ करता था। वो वहाँ पे जाके अपनी रिहर्सल करते थे, अपने नाटक की जो तालीम करते थे उसकी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। मेरा जो बड़ा भाई गणेंद्र है, गणेंद्र ने एक पंडित तारका रत्न, इनका जो ड्रामा वो करने वाले थे, उसकी रिहर्सल वो घर में ही किया करते थे। घर को ही वो स्टेज बना देते थे। तो मैं हमेशा वह जो भी डायलॉग्स बोलता था वो बहुत ब्यूटीफुली डिलीवर करता था और मैं दूर से उनको देखता रहता था। ये मेरे लिए एक शुरुआत ही थी, जिसे आप कह सकते हैं। वो घर का मेन था और वो हमेशा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करता था। आज मैं जो भी हूँ वो इसी बदौलत बोल सकते हैं। तो मैं देखा करता था उनका प्रोनंसिएशन कैसे होता था, उनकी देशभक्ति, उनके ड्रेस जो होते थे, उनकी म्यूज़िक, उनका बोलना, उनका लिखावट का ढंग, ये सब मेरे लिए, और उनके जो नाटक थे वो भी देशभक्ति के अराउंड ही होते थे। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट और डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री का स्टूडेंट था। वो दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी। जो उसका ऐतिहासिक जो वर्क था बंगाली में जो लिख रहे थे वो पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने संस्कृत ड्रामा को पब्लिश किया था विक्रमोर्वशी। तो ये विक्रमोर्वशी, ये जो उनका वेल नोन बुक है, और उन्होंने कुछ जो स्तोत्र होते हैं वो बहुत कम उम्र में, जब मैं छोटा था तभी वो गुज़र गए। पर उनकी बहुत सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई थी। वो एक मेन अट्रैक्शन थे। उनकी जो बॉडी थी, वो बोलने का ढंग, उनका चलने का ढंग, उनकी हैंडसम जो चेहरा था, उनके हेयर स्टाइल, ये कभी न भूलने वाली और मुझे हमेशा मोटिवेट करने वाली चीज़ें उनकी मैं हमेशा याद रखूँगा। उन्होंने हमेशा हमारे घर के, उनके फ्रेंड्स लोगों के बीच में वो हमेशा लीडर ही रहे। वो हमेशा लोगों को अपने पावर से, अपने बोलने के ढंग से अट्रैक्ट करते थे। और ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी जो वो लोगों को, मतलब लोगों को खींचे रखती थी। हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो उनकी तरफ खींचे चले जाते थे, उनके विचारों की तरफ खींचे चले जाते थे। वो जो बोलेंगे वो मानो लकीर बन जाती थी। ये पावर उनमें थी। गांव के मेरे फैमिली के जितने भी लोग हुआ करते थे वो उनकी बात इजीली समझ जाते थे। मुझे याद है कि मेरा जो बड़ा भाई है गुणेंद्र, वो भी सीधा उनके जैसे ही
है उनके जैसे ही बर्ताव करता था। वो भी हमेशा घर के सभी लोगों को एकत्रित करके बातें करता था, बताता था। उसकी बातें घंटों तक सुनते हुए घर के फैमिली मेम्बर कभी बोर नहीं हुआ करते थे। आए हुए मेहमानों को भी वो एंटरटेन करता था। पहले ज़माने में टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं थे, चैनल नहीं थे, तो ये जो बोरिंग सीरियल आजकल है वो भी नहीं हुआ करती थी। तो लोग अपनी बोलने की कला से, वैसे ही ये गुणेंद्र जो है मेरा भाई, ये भी अपने घर को तो ये कहीं पे भी बोलना शुरू कर देता था। और उसकी बातें ऐसी थी कि लोग घंटों तक, फिर वो कोई भी एरिया हो, फिर वो वाटर टैंक हो, फिश टैंक हो, नहीं तो हमारे घर का गार्डन हो, हमारा घर हो, और उसका टैलेंट और उसका नेचर तो इतना अच्छा था। वो भी अपने घर में ही अपने रिहर्सल्स करता था। जितने भी नाटक उसने किए थे, जितने भी स्टेज पे शो उसने किए थे, वो सारे के सारे वो घर में करता था। इसीलिए मुझे ये सब बचपन से ही देखने के लिए मिल गया कि कौन सी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कोई डायलॉग डिलीवर करते समय कैसे करना चाहिए, डायलॉग्स को याद कैसे करना है, उसको बोलना कैसे है, कौन से टाइम में कैसे सेंटेंस को छोड़ देना है। ये सब चीज़ें मुझे तब बचपन में ही पता चल गई थी। और ये मेरे ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ों के लिए तो बहुत बड़े बड़े हम बुज़ुर्ग बन जाते हैं, फिर भी ये चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं जो मुझे बचपन से। और ये वाली सारी की सारी चीज़ें जो स्टेज जो घर में बना करता था, मेरी पूरे फैमिली मेम्बर्स उसको उसके अंदर घुस जाते थे। वो वही नाटक अपनी इसमें करते थे। वो जो मेरा भाई था वो उसके फ्रेंड को घर में लेके आता था और हमारी ड्राइंग रूम का स्टेज बन जाती थी, रिहर्सल होती थी। वो मुझे घंटों तक सुनना देखना बहुत अच्छा लगता था। इससे क्या होता था, इससे मेरी जो लिखने की कला तो है, नाटक, ये सब चीज़ें मैं अच्छे से जान सकता था। और मुझे याद है जब वो हंसते थे, जब वो बातें करते थे, कुछ कॉमेडी करते थे, तो मैं भी उनके साथ वही सारी चीज़ें कर लेता था। इवन मैं अभी एग्जैक्टली वो जो गाने गाते हैं, वो जो गाना बोलते हैं, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है मैं गुनगुनाता था, मैं भी बोलने की कोशिश करता था, और मैं भी उनके जैसे होप में जीने की कोशिश करता था। मुझे याद है कि मेरा जो भाई है गुणेंद्र, जब वो और हम स्कूल में जाया करते थे, और गुणेंद्र को एक बार प्राइज़ मिल गया था। तो मुझे तो नहीं मिला था, लेकिन मेरे भाई को उसने बहुत अच्छे से स्कूल का मतलब स्कूल में रेगुलर किया था, और ये सब चीज़ें उसने की थी। तो मेरा जो नेफ्यू है सत्या, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और फिर उसे प्राइज़ मिल गया। प्राइज़ मिलने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे तो कोई प्राइज़ नहीं मिला था, लेकिन मैं सत्या को मिला हुआ प्राइज़ और उसके लिए बहुत खुश था। मैं घर भाग भाग के, दौड़ दौड़ के मैं आया। मेरे फैमिली मेम्बर जो थे वो वहाँ गार्डन में ही खड़े हुए थे, चेयर के पास, और वो बातें कर रहे थे, और मैं वहाँ से भागते हुए आया और मैंने उनको बताया कि सत्या को प्राइज़ मिल गया, सत्या को प्राइज़ मिल गया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे गोद में उठा लिया, गुणेंद्र ने, और उसने मुझे पूछा कि तुम्हें मिला? मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन सत्या को मिला है। वो बहुत जीनियस है और उसने मेहनत की, उसको फल मिल गया, देखो उसका प्राइज़ देखिए। तब मेरे भाई ने बोला, अरे तुमको जलसी फील नहीं हो रही है? उसे मिला, तुम्हें नहीं मिला। तो मैंने बड़ी ही हैरानी से उसकी तरफ देखा, और मैं ही मन सोच रहा था, भले किसी को मिले, लेकिन प्राइज़ तो मेरे ही घर में आ गया था। ये सब चीज़ें बहुत मेरी हेल्दी फैमिली से ही मुझे मिली थी। ये विचार भी उन्हीं की तरफ से मुझे मिला था। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला था, मैं भी तो मेहनत करता था। इसके लिए मुझे कभी मेरी मिस्टेक पता ही नहीं चली। मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि मैंने ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, और मुझे नहीं मिला इसलिए पछतावा भी नहीं था, और इसके लिए बुरा भी नहीं लग रहा था कि मुझे नहीं मिला, सत्या को मिला। यही चीज़ जो थी, ये जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, और ये हर फैमिली में हर लोगों ने एक दूसरे को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए
कि हमारे एकत्रित फैमिली में अगर ऐसा हो जाए तो हमने जेलसी फील नहीं करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।